स्तुति करो। एक परिवार ने इतनी महान गवाहियों को देखा है, एक परिवार ने। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके घर का आदर किया है। May their testimony be your testimony in Jesus name. मैं ये घोषणा करता हूं, परमेश्वर आपके ठट्ठा करने वालों के मुंह बंद कर रहा है यीशु के नाम में। God is shutting the mouth of those who mock you. सारे ठट्ठा करने वाले जो आपको सालों से ठट्ठा करते आए हैं, उनके मुंह बंद होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। All of your mockers are being shut in the name of Jesus. प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। सो आज हमारी अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है। Today is our anointing oil service. और अपने मन में बार बार इस बात को दोहराते रहो कि प्रभु आज जब तेरा वो अभिषेक किया हुआ तेल मेरे बदन को छुएगा, हर एक शैतान का काम नाश हो रहा है यीशु के नाम में। Keep on speaking and keep on repeating this in your heart today as that anointing oil touches my body. Every work of the devil, every plan of the devil is destroyed against me and my house. इसीलिए टेस्टिमनीज इतनी पावरफुल है। This is why testimonies are so powerful. जो शब्द टेस्टिमनी है उसका ग्रीक में मतलब है डू इट अगेन। The word testimony in Greek, it means दोबारा करो, इसको दोहराओ। इन बहन ने क्या किया? उन्होंने चेतन की गवाही सुनी, जिसका गॉल ब्लैडर सर्जरी से निकल गया था और प्रभु ने एक नया गॉल ब्लैडर उसके शरीर में बनाया। She heard the testimony of brother Chetan, whose gallbladder was taken out in surgery, and God recreated a brand new gallbladder. और उन्होंने कहा प्रभु जब उनके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी होगा। And she said, Lord, if you have done it for him, you'll also do it for me. इसीलिए एक और बात ध्यान से सुनो। जब प्रभु आपको चंगा करता है और आप गवाही नहीं देते, आप किसी और की चंगाई चुरा रहे हो। When God heals you and you do not testify, you are stealing someone else's testimony. मगर जब आप चंगे होते हो और आप गवाही देते हो, आपकी गवाही से कितने हजारों लोग और चंगे हो सकते हैं। But when you are healed and you testify, your testimony is the catalyst to heal many others. और जब आप गवाही देते हो तो वो जो चंगाई आपके जीवन में है वो स्थापित की जाती है। And when you testify, the healing in your life is established. The testimony is established. यानी शैतान चुरा नहीं सकता उसे। The devil cannot steal it. Okay? आज मैं आपको I'll teach you two dimensions of the Holy Spirit, which is very important for every believer to understand. मैं पवित्र आत्मा के दो आयाम आपको सिखाऊंगा जो हर विश्वासी को सीखना बहुत जरूरी है। Okay? Anointing, बहुत कम विश्वासी लोग anointing को समझते हैं। Very few believers understand the anointing. Anointing केवल एक प्रचारक के लिए नहीं है, anointing हर एक खुदा के बेटे और बेटी के लिए है। Anointing is not just for preachers, but the anointing is for every son and daughter of God. Yes, खुदावन क्या करता है, अपने कुछ लोगों को अलग करता है, अपने दासों को, और उनको एक स्पेशल तरीके से अभिषेक करता है कि वो एक तरीके से उसकी देह पे उन्नति ला सके। Yes, God separates some of his servants in a special manner that they can bring an edification in his body. But anointing is for everyone. लेकिन वो अभिषेक हर एक के लिए है। Okay? और शैतान anointing से नफरत करता है। And the devil hates the anointing. क्योंकि anointing उसके जुए को तोड़ डालता है। Because the anointing breaks his yoke. Okay? So मैं आज आपको दो तरह के anointing के बारे में सिखाऊंगा। अनॉइंटिंग जो आपके अंदर कार्य करता है और अनॉइंटिंग जो आपके ऊपर कार्य करता है। So I'll tell you about two kinds of anointings. First, the anointing that works within you, and second, the anointing that works upon you. और दोनों होना बहुत जरूरी है। And it is important to have both. Okay? क्योंकि परमेश्वर की देह में बहुत कंफ्यूजन है। Because there's a lot of confusion in the body. कई लोग बोलते हैं जब मैंने उद्धार पाया तो मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। Some people say when I received salvation, I received the Holy Spirit, now I don't need anything else. तो आज हम वचन से सीखेंगे, ठीक है? So today we will learn from the word. सीखना चाहते हो? You want to learn? हाँ, धन्य है वे जो वचन का आदर करते हैं। Blessed are those who honor the word of God. Okay? So सबसे पहले हम चलते हैं, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि anointing is the presence and power of God working through a human vessel.
अभिषेक परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ्य है जो एक मनुष्य रूपी बर्तन के द्वारा काम करती है. अभिषेक बिजली की तरह है. Anointing is like electricity. अभी यहाँ पे अभिषेक है पूरी जगह, There is anointing in this place right now, बिजली की तरह. like electricity. हाँ, मगर बिजली बिना तार के आपके घर में नहीं बह सकती. But electricity cannot come into your house without wires. परमेश्वर की सामर्थ सब जगह है इस समय. The power of God is everywhere. He is omnipresent. He is present everywhere. वो सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है. But He puts His power in human vessels लेकिन वो अपनी सामर्थ्य को मनुष्य रूपी बर्तन में डालता है so that they can become deliverers in their generation. ताकि वो अपनी पीढ़ी में छुटकारा देने वाले बन सकें. May each one of you be a deliverer in Jesus' Amen. name. आप में से हर कोई छुटकारा देने वाला हो यीशु के नाम में. एक काफी नहीं है, One is not लाखों enough. छुड़ाने वालों को खड़ा होना पड़ेगा इस देश में. We need lakhs of deliverers in this nation. हालेलुया. और ये इंसान के बारे में नहीं है. And this It's is not not that about- man. It's the anointing working through that man. ये एक मनुष्य के बारे में नहीं, लेकिन उस अभिषेक के बारे में है जो उस मनुष्य के द्वारा काम कर रहा है. हालेलुया. मगर जैसे आप खुदा के साथ बढ़ते हो, But as you grow with the Lord, बहुत जरूरी है. अब लोग क्या करते हैं, लोग घर जब बनाते हैं तो लोग बोलते हैं भाई एंकर की तार लगाना या हेवल्स की लगाना, अच्छी तार लगाना, कोई सस्ती वाली मत लगाना. when people build their house, they say what brand wires to buy for the electricity. क्योंकि सस्ती होगी तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. If it's a cheap वो wire, it will तार short circuit. उसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी पावर को झेलने की. That wire doesn't have the capacity to handle such voltage of power. अब hear this. अगर आपका अंदर का अभिषेक कम है जो आपके ऊपर अभिषेक है तो If the anointing within you is lesser than the anointing upon you. क्या होता है, कोई व्यक्ति है, उसने प्रार्थना करी, कैंसर हुए, अब वो फूल गया. So someone prayed and somebody's cancer got healed. Now this man is all puffed up. कोई व्यक्ति है, उसकी बहुत मिनिस्ट्री है, चंगाई कर सकता है, मगर फिर वो किसी को कुछ नहीं समझता. Now a man who has a healing ministry can heal people and now he doesn't consider anybody घमंड से anything. भर गया. Is filled with pride. क्या हुआ? What happened? क्योंकि अभिषेक जो अंदर है वो डेवलप नहीं हुआ, अभिषेक जो ऊपर है केवल उससे कार्य कर रहा है. Because the anointing within has not developed yet, the anointing upon is working. इसीलिए आपने सुना है कितने परमेश्वर के ऐसे दास हैं, महान व्हील चेयर से लोगों को उठा रहे हैं मगर छुप के पाप में जीवन जी रहे हैं. So you've heard of many such people who had great anointing to lift people out of wheelchairs but lived a sinful life behind the curtains. क्यों? क्योंकि अंदर का अभिषेक नहीं डेवलप किया. Because the anointing within has not been developed yet. दोनों बहुत जरूरी हैं. Both are ठीक very है, important. आज मैं आपको ये दोनों सिखाऊंगा कि आप सीखो इस बात को कि अभिषेक जो आपके ऊपर है वो दरवाजों को खोलेगा, मगर अभिषेक जो अंदर है वो खुले दरवाजे को खुला रखेगा. The anointing upon you will open the doors, but the anointing within will keep those doors open. कि आप शूटिंग स्टार ना हो. शूटिंग स्टार समझते हो? That you won't be a shooting star. तारा जो गिरता है, ऐसी सेवकाई नहीं करनी है, हमें आखिरी सांस तक करनी है. We should not minister like this. Our ministry should be till our last breath. ओके, सो चलिए अब जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं ध्यान धरकर सुनना, वो वचन से है. ठीक है? Hear carefully, whatever I'm teaching is from the word. John 14:16 to 17. यूहन्ना 14:16-17. John 14:16 to 17. और यीशु मसीह कह रहा है, I will pray the Father and he will give you another helper that he may abide with you forever. यीशु कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा. सबसे पहले I want you to focus, इस बात में मैं चाहता हूं आपका ध्यान ले जाना कि वो कब रहेगा तुम्हारे साथ? सर्वदा रहेगा. कब तक रहेगा? सर्वदा रहेगा. The first thing you have to understand, he will be with you forever. क्योंकि कई लोग सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा छोड़ देगा आपको, नहीं, वो सर्वदा रहेगा. Because some people teach that the Holy Spirit will leave you. No, he will be with you forever. ओके, इस रिश्ते में he will never divorce you. In this relationship वो कभी भी आपको तलाक नहीं देगा. वो कहता है मैं सर्वदा तेरे साथ रहूंगा. He says, I will be with you forever. Amen. That he will abide with you forever. वो हमेशा आपके साथ The रहेगा. Spirit of truth, सत्य का आत्मा, whom the world cannot receive. जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता. ओके, सो ध्यान से इसको सुनो. Hear carefully. वर्ल्ड, अरे ओके, cannot
receive the Holy Spirit. संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता. World cannot receive the Holy Spirit. संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता. ठीक है, यीशु मसीह ने क्या कहा? संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता. Jesus said the world cannot receive the Holy Spirit. Okay, because it neither sees him nor knows him. क्योंकि ना तो वो उसको जानता है ना ही उसको देखता है. But you know him. लेकिन तुम उसको जानते हो. For he dwells with you क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है and will be in you. और वो तुम में होगा. अब ध्यान से सुनो. Be carefully. जब चेलों को प्रभु ने भेजा, जाओ दुष्ट आत्मा निकालो, मुर्दों को जलाओ, चमत्कार करो, तो चेलों के साथ पवित्र आत्मा उनके साथ था, उनके अंदर नहीं था. कहां था? उनके साथ था. Jesus said the Holy Spirit is with you and shall be in you. When Jesus sent the disciples to cast out demons, to set the captives free, to resurrect the dead, the Holy Spirit was with them, but Jesus here says the Holy Spirit will be with you and in you. Okay, ठीक है. So चेले उस टाइम तक चेलों का नया जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा नया जन्म कैसे होता है? पवित्र आत्मा से. यूहन्ना 3:3, जो आत्मा से जन्म लेता है वो आत्मा है. Till that moment, the disciples had not been born again yet, because our new birth comes from the Spirit. He was born from the Spirit of Spirit. Amen. अब जो दुनिया है, the world cannot receive the Holy Spirit. संसार पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता. मगर अब यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से या संसार से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया. सो यीशु मसीह किसके लिए दिया पिता ने? संसार के लिए. God so loved the world that he gave his son for the world. That means world can receive Jesus. इसका अर्थ है संसार यीशु को ग्रहण कर सकता है. ठीक है. संसार यानी जो लोग पाप में हैं, जो पापी हैं, sinners cannot receive the Holy Spirit. Those who are in the world who are not born again, those who are in sin cannot receive the Holy Spirit. मगर संसार जो दुनिया है वो यीशु को ग्रहण कर सकते हैं. But the world can receive Jesus. Okay, so hear this. Jesus is God's gift for the world. यीशु परमेश्वर का गिफ्ट है दुनिया के लिए. यीशु तोहफा है पिता का किसके लिए? दुनिया के लिए. मगर पवित्र आत्मा पिता का तोहफा है अपने बेटे और बेटियों के लिए. But the Holy Spirit is the gift for God's sons and daughters. ये क्लियर हो गई बात? Clear? ठीक है. यानी जब तक कोई परमेश्वर की संतान नहीं बनेगा, वो पवित्र आत्मा नहीं ग्रहण कर सकता. Unless one is a child of God, they cannot receive the Holy Spirit. लूका 11:13. If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him. अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा. बाइबल कह रही है, आप क्या करते हो? जितने आप माँ बाप हो, आप अपने बच्चों को बेस्ट गिफ्ट देते हो अपनी हैसियत के हिसाब से. सही बात है? You give the best gift to your children according to your standards. जितना बेस्ट आप दे सकते हो The आप best- अपने बच्चों को दे रहे हो. The best तो that you- यीशु मसीह कह रहा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हो, तो पिता भी अपने बच्चों को बेस्ट देता है, और पिता जो अपने बच्चों को बेस्ट देता है वो पवित्र आत्मा है. So Jesus is saying, when you being evil give your best to your children, the Father who is good also gives his best to his children, that is the Holy Spirit. So hear this. Holy Spirit is the Father's best gift to his children. पवित्र आत्मा पिता का बेस्ट गिफ्ट है अपने बच्चों के लिए. Okay? अगर आप, कई लोग नहीं जानते इसको, तुच्छ समझते हैं. Many of you don't understand and you हमें लगता है despise it. गिफ्ट क्या, केवल घर दे दो, प्रभु एक बड़ी मिल. अगर पवित्र आत्मा पिता ने आपको दिया, तो वो बेस्ट दिया है पिता ने अपना तोहफा आपको. Some people say, God give me a house, give me this, give me that, but they don't understand. If God has given you the Holy Spirit, this is the best that God has to give. Okay? अब हुआ क्या कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो मर गया, पुनरुत्थानित हो गया, अब चेले डर के कमरे में छुपे हुए हैं.
When Jesus was buried and then he resurrected, now the disciples are in a room, they are scared. अभी तक उनका नया जन्म नहीं हुआ है, Till now they were not born again. क्योंकि जब तक यीशु मसीह मर के जिंदा नहीं हो जाता तब तक नया जन्म नहीं हो सकता रहा मानव जाति। Until Jesus was resurrected from the dead, a new birth. So born सबसे again could not पहले be. जब यीशु मसीह जीवित हो गया वो इन चेलों के पास गया और देखो वो क्या कह रहा है यूहन्ना 20:21 से 22 में। So Jesus said to them again, peace to you, as the Father has sent me, I also send you. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. When Jesus was resurrected, he went to the disciples. उसने कहा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पे फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। क्या किया यीशु मसीह ने? सबसे पहली चीज क्या दी चेलों को? What was the first thing Jesus gave to the disciples? और पवित्र आत्मा देने से पहले क्या बोला? बोला जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भी भेजता हूं, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। He said, as the Father has sent me, so I send you. Receive the Holy और Spirit. उससे पहले क्या किया उसने? उसने उनके ऊपर फूका। ये दिखाता है वो परमेश्वर है जिसने आदन के वाटिका में आदम की नाक नथुनों में श्वास को फूका और यीशु ने कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो। And he breathed on them. This shows the God who breathed into the nostrils of Adam in the Garden of Eden. He breathed and said, receive the Holy Spirit. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब यीशु ने चेलों को बोला पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, तो क्या उन्होंने ग्रहण करा पवित्र आत्मा को? When Jesus said, receive the Holy Spirit, did the disciples receive the Holy Spirit? जी हाँ, Yes. करा। Yes, they received. उस समय उनका नया जन्म हो गया। क्या हो गया? नया जन्म हो गया। अब वो आत्मा से उन्होंने जन्म ले लिया, क्योंकि पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा था जो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है वो कहां होगा? तुम्हारे अंदर होगा। तो अभी जब यीशु ने सांस को फूका तो पवित्र आत्मा कहां गया? चेलों के अंदर गया। In that moment, the disciples were born again. Jesus said, the Holy Spirit will be in you. When he breathed, the Holy Spirit was in the disciples now. पहला कुरिन्थियों 3:16, 1 Corinthians 3:16. 1 Corinthians 3:16 क्या लिखा है इसमें? That क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में, इंग्लिश बाइबल सेज इन यू, तुम्हारे अंदर वास करता है। Do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? यानी जब आपका नया जन्म होता है तो क्या होता है? पवित्र आत्मा कहां जाता है आपके? So when you are born again, the Holy Spirit comes to live inside of you. तो आज मैं ये कंफ्यूजन खत्म कर देना चाहता हूं, क्या हमें पवित्र आत्मा मिला नहीं मिला? अगर नया जन्म पाया तो पवित्र आत्मा मिला है। So I want to end this confusion today. If you have been born again, you have received the Holy Spirit in you. मगर एक और एक्सपीरियंस है। But there is one more experience. ओके, यीशु ने अब चेलों को क्या कहा? प्रेरितों के कार्य 1:4-5 में, and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. प्रेरितों के काम 1:4, यीशु ने और उसने उनसे मिलकर उन्हें भेज आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ओके, पहला क्या कहा उसने? पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। अब उन चेलों ने पवित्र आत्मा पाया? कम ऑन, टॉक टू मी। पाया? At first he had said receive the Holy Spirit. तो फिर अब यीशु क्यों बोल रहा है कि वेट करो जब तक तुम आत्मा का बपतिस्मा ना पालो? Then why is Jesus saying now wait till you receive the baptism of the Holy यानी Spirit? आत्मा का बपतिस्मा पाना एक अलग अनुभव है नया जन्म पाने से। That means baptism of the Spirit is another experience than being born again. ठीक है? ओके, क्लियर हो गया? उन चेलों ने पवित्र आत्मा पाया, मगर यीशु मसीह ने कहा तुम वेट करो, तुम्हें एक और चाहिए, तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी चाहिए। Those disciples were born again, but Jesus said wait because you need the baptism of the Holy Spirit. क्यों? क्योंकि जब बपतिस्मा तुम पाओगे तो कुछ होगा। Because when you receive the baptism something will happen. क्या होगा? Acts 1:8, What will happen? but you shall receive power
परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे. जब अंदर आएगा तब नहीं, Not जब when- ऊपर आएगा. Not when the Spirit comes inside, but when the Spirit comes upon you. जब आप देखो यहाँ इंग्लिश में क्या लिखा है, बट यू शैल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट हैज कम अपॉन यू. तुम सामर्थ्य को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा. हाँ, कहाँ आएगा? अंदर नहीं, क्योंकि अंदर तो आ चुका है. He has already come to live inside, not inside now. So okay, I want to explain this so that you understand. Holy Spirit in me is for me. Holy Spirit upon me is for others. पवित्र आत्मा मेरे अंदर मेरे लिए है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दूसरों के लिए है. Okay? आपने सुना है कितने लोग कहते हैं, हाय हम तो बहुत कोशिश करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है हमारी यीशु मसीह में. कोशिश कर रहे हो ना आप अपने हिसाब से. Yeah, some people say we try so much, but Jesus doesn't hear us because they've been trying. सामर्थ को पालो. You receive the power. उसने कहा जब सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे. He said, when you receive the power, you will be my witnesses. जिनको सामर्थ मिल जाती है वो सामर्थी गवाह बन जाते हैं यीशु मसीह के. Those who receive His power, they become powerful witnesses of Jesus. ओके, अब इसको मैं जल्दी से एक चीज बताता हूं सो तुम्हें समझ में आए. John 4:14, but whoever drinks of the water that I give him will never thirst. यूहन्ना 4:14, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा. सोचो मैं आपको बोलूं, मैं एक गिलास में पानी डाल के मैं आपको दूं और मैं बोलूं ये गिलास पानी पी लो, आज के बाद कभी प्यास नहीं लगेगी. Imagine I give you a glass of water and I say, if you drink this, you will never be thirsty ever again in life. यही यीशु कह रहा है. This is what वो Jesus कह रहा है जो is saying. पानी मैं तुम्हें दूंगा, He says, the water that I give you, अगर ये पानी पी लिया if you drank it, तो फिर कभी प्यासे नहीं होगी. you will never ever be क्यों? thirsty. क्योंकि कह रहा है ये पानी तुम्हारे अंदर जाके एक सोता बन जाएगा जो उमड़ता रहेगा. Because he says this water will go inside you and become a fountain within, springing within. सोचो आपने एक गिलास पानी पिया You drink, you और वो आपके अंदर जाके एक सोता बन गया. imagine you drink a glass of water and आपको become a प्यास नहीं लगेगी fountain. कभी. You will never be thirsty. ये दर्शाता है नए जन्म को. This shows the born again experience. जब पवित्र आत्मा आपके अंदर जाता है, When Holy Spirit goes inside you, अब आपकी तलाश खत्म हो जाती है. अब नहीं आप ढूंढते, अब आप 50 जगह नहीं जाते. आपको पता लग जाता है जीवित परमेश्वर एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह है. now your search is over. You're not running here and there 50 places because you know there is only one true living God. His name is Jesus. ओके, तो ये श्रोता कहाँ है? Where is this fountain? अंदर है. ठीक है, तो अब Within मेरे you. अंदर एक है श्रोता चल रहा है. मगर अगर आप प्यासे हो, There's a fountain within me, but if you are thirsty, मैं आपकी प्यास नहीं बुझा सकता, I cannot quench your thirst क्योंकि वो सोता मेरे लिए है, because that fountain is for me. क्योंकि मेरे अंदर उमड़ रहा है. It's within me. इसीलिए springing आप up. अपना उद्धार किसी को उदार नहीं, आप अपना उद्धार किसी को उधार में नहीं दे सकते. So you cannot give your salvation to someone else. You cannot loan it to another person. समझे? फिर से बोलता हूं, आप अपना उद्धार किसी को उधार में नहीं दे सकते. You cannot lend your salvation to another person.